crack it on my own. There was no reference और मतलब वो दादा भाई लगा दो ये सब नहीं था. I 9% पाया हूँ. जिंदगी में आज तक कभी फर्स्ट नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ, लेकिन सेकंड डिवीजन की बात कर रहा हूँ. कोई मतलब 10th में भी मेरी 56% थी, 12th में 48%, ग्रेजुएशन में भी 48-49%. तो यार मेरा होगा. लोग नंबर ऑफ एप्लीकेंट देखते हैं और वैकेंसीज देखते हैं. आपको बस इतना नंबर लाना है. तो आप वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेंट्स कितने हैं, कितने परसेंटेज सिलेक्शन होता है, इतना कम मतलब इनका इनपुट है, ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी. तो तो वहां पे ट्रेनिंग हुई. वहां पे बेसिकली फिजिकल ट्रेनिंग हुई. जैसे फिजिकल आपका एट्रीब्यूट्स देखा जाएगा. सेकंड ट्रेनिंग वाज मोर इन टेक्निकल टर्म्स, लाइक बहुत सारी Okay. चीजें होती हैं आईबी में. कोवर्ट ऑपरेशन कैसे करें, ऑपरेशन कैसे डिजाइन होता है, बॉम्ब्स एक्सप्लोजिव्स वगैरह को पहचानना, ट्रैक करना, कंप्यूटर पे लाइट डिटेक्टर टेस्ट से बचना, ये सब इन दिल्ली आईबी Okay. हेडक्वार्टर्स में 2 महीने. तो Okay. जैसा कि आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हो ना, वो सेक्टर होता है, क्लियरेंस मिलता है, आप यहाँ तक जा सकते हो, फिर आपका क्लियरेंस हुआ नहीं, वैसा पूरा डिजाइन था वहाँ. जैसा कि आईबी है तो बॉर्डर इलाके में ही होगी. आईबी व्हाट आईबी वांट्स, द पॉइंट इज कि व्हाट आईबी वांट्स फ्रॉम यू. देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस who usually apply for IB exams, but very few crack it. So what IB wants presence of mind. IB wants aptitude. IB wants smart answers. Hello and welcome to Captain Squad. This is Vishal, and today we have with us WBCS 2016 topper Manish Mishra sir. Sir, welcome to Captain Squad. Thanks, Vishal. Thanks for inviting me on Captain's Track. Thanks. Basically, Manish sir will share with us his experiences of various examinations he has cracked. Sir, if you could please let our viewers know about yourself, your little bit about your educational background, what all examinations you cracked, etc. If you could just tell. Well, Vishal, to start with, I'm a science graduate. Basically, I graduated in science, pass Okay. course. Nothing special about it because I could not get an honors. Simple, because in 12th I scored very badly, miserably. So I Okay. got pass course and I cleared it with denting marks, not very well as well. Reason being, I always wanted to do MBA, right? At that point of time when I graduated, MBA was hot thing. It was selling like hot cake, in 2010, 9, 10, in 2009. Okay. 2009, long back. From which It's been, it's college? been, I was in Ramkesh Mission Rahara. It's near Okay. to Barakpur. There's a place called Okay. Rahara. Okay. A lot of people know about it. So it was all So in your all a boys' college. hometown. Is Acha. Barakpur. So basically, I did the schooling from a nearby school, very famous school in that locality, Bholanda National Vidyalaya. Initially, I got schooling till class 5 in army school. Then later on, I went to Bholanda National Vidyalaya. I studied there till 12th, and later on, I went to Ramkrishna Mission Rohra for doing my graduation in past course, science. Okay, so I did it. Later on, I thought what to do now, because I didn't have, very good, very fair number at that point of time. I got only 49% in graduation. Past course student Okay. usually get this kind of numbers only. So I thought, okay, I'll do MBA. I went to Delhi. That time I went to, I could not, switch up to any idea and thought what to do now. So I got some relatives in Delhi. So I went there to do MBA. So when I got there, I got into an institute, some IMS learning. You might have heard of it. At that time, it was a very famous institute for preparing MBA examinations. The first day I went into the class, they Hmm. demotivated me like anything. They said that Like if you how? can't, I am telling you, like they said that if you can't, sit for CAT, or if you can't crack CAT, then MBA is not for you. So I Hmm. thought, I don't have 50% in graduation. I'm not eligible for sitting in CAT, because that time, that was the first time or the second year, I don't know. I don't know exactly, but at that point of time only,
government came up with this policy that only 50%, those who have 50% in graduation can sit for CAT examination. I was like, okay, this MBA is gone now. So that was the first and last day I went to IMS. I gave like 25,000 in advance, and I never went back. So So you later on I dropped the thought कि idea what of doing MBA. हाँ, regular MBA idea was sudden. I dropped it then and there sudden because I could not sit for CAT and I was too young, 21 years old. Any anybody, I didn't have any idea of the outer world. I just straight from out of college, I went to Hmm. Delhi, and first day in an institute in a new city, new people, new language, everything was new. And sudden, smart and handsome and a very experienced teacher came and he said that if you cannot sit for CAT, your dream of MBA is over now. You should not go for MBA at least if you cannot sit for CAT. I thought if I made Okay. 50% है ही नहीं. So, and I, as you know, I belong from a general background, so I could not. So I thought कि क्या करे अब. So I was young. तो उसी समय at that point of time I thought ना somebody from somewhere, some distant 21-year old. बहुत जल्दी बात तो. I was very gullible at that point of time. मतलब in those times I was gullible, so I thought okay. तो मैंने ऐसी प्राइवेट कोई एक नौकरी कर ली कॉल सेंटर में ऐसे. तो यहाँ से शुरू हुआ मेरा, मतलब आई स्टार्टेड माई, you can say, professional or what, any sort of career. I started it off. So I started doing my first job in a company called AG's. It was Okay. 7 or 8,000. Then, I was getting paid only 7 or 8,000 rupees, but I was very happy because I could, crack it on my own. There was no reference or मतलब वो दादा भाई लगा दो ये सब नहीं था. I straight went to a consultant. मतलब googling it on internet. Even internet was very new for me at that point of time. तो Google किया consultant आसपास कहाँ है, तो ऐसे ही चला गया. Young था, confidence थी, तो चला गया. And luckily or fortunately I got a job. I landed up with a job. तो ऐसे ही start हुआ मेरा professional career. तो for the first 3 years of my life, मतलब professional career, I never thought, मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैं सोचता भी नहीं था कि I'll go in सरकारी फील्ड और गवर्नमेंट फील्ड ऐसा. तो गवर्नमेंट तो के सर नाम पे बस आपके मैं दो. सर हाँ आपका मतलब मतलब गवर्नमेंट के ये नाम पे बस ट्रांजिशन कैसे हुआ? वही उसी पे आ रहा हूँ मैं. गवर्नमेंट के नाम पे बस दो चीज जानता था मैं. एक बैंक होता है और एक रेलवे होता है. सिंस माय मैटरनल साइड में रेलवे में काफी लोग हैं, मेरे मामा एंड ऑल, अच्छा. नाना जी भी रेलवे में थे. तो आई नो कि हाँ रेलवे में सरकारी नौकरी होती है. और बैंक्स बहुत हॉटकेक जैसे बिकते थे उस समय. ठीक है. तो बैंक्स में भी एक कंडीशन था उस समय भी, परसेंटेज था उसमें बैंक्स में. Even to sit for clerk examination, you got to have at least 50% in graduation. So bank was also out of the question, out of the situation at that point of time. Even You for got BOs, 49%. I got 49%, 48 point something to be precise. Okay, so 49% was what I got in graduation. So basically उस समय PO में बैठने के लिए भी 60-65% के आसपास लगता था. तो मेरा इच्छा भी नहीं था वो सरकारी, मतलब पता नहीं ऐसा टेम्परामेंट कभी डेवलप नहीं हुआ उस समय कि आई शुड गो फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑल. इट वाज ऑल एक्सीडेंटल. ठीक है. आई एम एक्सीडेंट. आई एम, मतलब टू से इट, आई विल से आई एम एन एक्सीडेंटल गवर्नमेंट सर्वेंट. आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ इट एवर. तो उसके बाद 2-3 साल चलता गया और मतलब काफी अच्छी प्रोग्रेस भी हुई मेरी. पता नहीं यंग था या जो भी रीजन था, आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब एक बंदा जो कभी अपने इलाके से, लोकेलिटी से बाहर नहीं गया या बहुत ज्यादा कॉलेज स्ट्रीट चला जाता था किताब उताब खरीदने, ऐसे वैसे कलकत्ता के नाम पे यही जानता था. बैरकपुर से वैसे भी कलकत्ता सबब है 22-23 किलोमीटर. तो दिल्ली के सेंटर में आप हो, गुड़गांव जा रहे हो, कैब वैब आ रही है, उस समय बड़ा मतलब ये बहुत हैपनिंग लगता था. बट लेटर ऑन ट्रांजिशन कैसे हुआ वो बता रहा हूँ. लेटर ऑन जो 2-2.5 साल हो गया, मेरा अच्छा प्रोग्रेस भी था. मैंने काफी अच्छी प्रोग्रेस की, लाइफ को जिया जैसा होता है, यंग बंदा जैसा होता है. फिर मुझे लगा कि यार एग्जीक्यूटिव एमबीए ना, मतलब करके ज्यादा फायदा नहीं होता है, बट वो डिग्री ऐड हो जाती है लेकिन उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है आपके प्रोफेशनल करियर में. ऐसा इंडस्ट्री में जाने के बाद मुझे बताया गया या पता चला. तो मैंने सोचा अब क्या करूं, मेरे पास तो रेगुलर में एमबीए भी नहीं है. तो मैंने उसी बीच एमबीए दे दिया था. एक एमबीए का एग्जाम मैट होता है, मैनेजमेंट मैट. एप्टीट्यूड टेस्ट. वो मतलब जो कैट नहीं दे पाते या कैट जिनको टफ लगता है वो मैट देते हैं. लकीली मैट जब देते मैं हैं.
हाँ जो मैट मैंने वो 2010 या 11 में शायद, मुझे ठीक से डेट मतलब ईयर याद नहीं है, तो 11 में मैंने मैट दिया। तो मैं ऐसे ही चला गया बिना कोई प्रिपरेशन, में तो नौकरी कर रहा था एमएनसी में। वो हम्म, मेटलाइफ थी, एक सन लाइफ, ऐसे ही मतलब इंश्योरेंस कंपनी अच्छा। में बैकएंड में काम करता था, और अच्छे से चल कट रही थी मेरी। तो मैंने मैट दिया। मैट में लकीली या फिर पता नहीं क्या हुआ, या लोग बेवकूफ थे उस समय, या मैं ज्यादा होशियार हो गया, पता नहीं क्या हुआ, आई गॉट 99.93%। वाह। 99.93। तो मुझे लगा यार ये तो मतलब अद्भुत है, मतलब ऐसा तो मैंने कभी तैयारी नहीं की, कुछ नहीं की, या तो ये एग्जाम इजी है, या तो और वो लोग विदाउट बेवकूफ आए हैं कि प्रिपरेशन थी, वो मतलब विदाउट विदाउट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। विदाउट प्रिपरेशन कुछ नहीं, तुम कभी नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो ठीक है, मेरा एप्टीट्यूड वगैरह तो लगता है ठीक है, तो मैं शायद मतलब, तो उसी बीच मेरा एक दोस्त, मैंने बताया भी था विशाल तुम्हें कि मेरा एक फ्रेंड है श्याम, स्कूल फ्रेंड है, वो भी कस्टम इंस्पेक्टर है। हाँ, तो कस्टम उसे, इंस्पेक्टर। हाँ हाँ, तो वो भी मेरे साथ ही कॉलेज में था, उसके बाद अच्छा फ्रेंड था, तो मैंने बोला, वो भी सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ, तो उसी समय उसको भी मैंने बुलाया दिया था, अकेले कौन रहेगा दिल्ली में, तू भी आ जा। तो वो भी आ गया था। तो वो भी ऐसे ही मतलब आईबीएम वाईबीएम में वैसे नौकरी जैसे होती है ना, मतलब जैसे हम लोग सॉल्ट लेक जाते हैं नौकरी करते हैं, वैसे बेसिक, हाँ, वैसे वो भी कर, प्राइवेट जॉब, हाँ प्राइवेट जॉब। हाँ। लेकिन उसका टेम्परामेंट था शुरू से कि वो मतलब तैयारी करेगा, तो मैं उसे देखता था, एक लूसेंट लेकर हमेशा पढ़ते रहता था, वो कॉलेज में भी पढ़ता था, मतलब वो शुरू से ही वो था अच्छा। कि वो सरकारी नौकरी, मतलब एक इंटरेस्ट था उसका। मैं मजाक वजाक उड़ा रहा है, क्या पढ़ते रहता है ये सब, ऐसे करके मैंने बहुत मजाक उड़ाया उसका। लेकिन उसके बाद ना उसका सीजीएल उसने दिया, मैंने नहीं दिया। अच्छा। तो 2010 में 10 में उसने सीजीएल दिया, सीजीएल में उसका प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, और ये जो ये होता है ना नॉन इंटरव्यू पोस्ट होता है टीए का, टैक्स असिस्टेंट, हाँ हाँ, टैक्स उस असिस्टेंट इन हाँ सीबीआईसी हाँ या। हाँ, तो उसका सीबीआईसी में हुआ, अभी आईसी था उस समय, सीबीईसी अच्छा। था सर, तब। एक्साइज एंड कस्टम, या हाँ सर, हाँ। सीबीईसी। तो एक्साइज उसका एंड उसका कस्टम। हो गया, उसकी पोस्टिंग होनी थी पुणे। तब उसने मुझे बहुत मतलब मोटिवेट किया। उसने मतलब सारे, वैसे तो सारे फ्रेंड्स ही मोटिवेट करते हैं, लेकिन श्याम चूंकि उस समय मेरे साथ था, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तू अच्छा है, तू कर सकता है, कर कर कर। तो एक चीज मैं तुम्हारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा बताना चाहता हूँ, ये सभी को बताना, जो भी व्यूअर्स देखे, मेरे मन में सवाल था उस समय की सीजीएल के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, मैं बोला यार मैं 49% पाया हूँ, जिंदगी में आज तक कभी फर्स्ट नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ, लेकिन सेकंड 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 डिवीजन की बात कर रहा हूँ, कोई मतलब 10th में भी मेरी 56% थी, 12th में 48%, ग्रेजुएशन में भी 48 49%, तो यार मेरा होगा। लेकिन मेरे से भी खराब हालत उसकी थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो जब उसका अच्छा। हुआ तो उसने मुझे बोला यार कर कर हो जाएगा, मैंने बोला श्याम कैसे होगा, इतने हम्म, लोग देते हैं, इतना इतना कम वैकेंसीज होता है ये मतलब। तो उसने बड़ा अच्छा एक मतलब, होता है ना मोमेंट्री कुछ बातें होती है जो आप याद रखते हो, जो आपको लग जाती, मतलब आप उसी को देखते हो। तो वैसे डब्ल्यूबीसीएस हो या कोई भी एग्जाम है ना, लोग क्या करते हैं ना, लोग नंबर ऑफ एप्लीकेंट देखते हैं और वैकेंसीज देखते हैं, फिर वो परसेंटेज निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, यार इतना कम है इनका तो मतलब बहुत एग्जैक्टली। इम्पॉसिबल जैसा है, या फिर यूपीएससी में है इतना। उसने मुझे एक चीज कहा, तू 350 नंबर लाएगा, मैंने बोला कितने में, 600 में। उस समय छह, अभी क्या नहीं पता, उस समय 600 का था, 200 प्री, 400 मेंस, और फिर इंटरव्यू वगैरह जो था वो अलग 100, था, मतलब हाँ, इंटरव्यू। हाँ 400 का मेंस था, 200 का 600, प्री था, हाँ। ठीक है, तो 200 का प्री 600 था, था। हाँ। हाँ तो ही आस्क्ड मी कि यार तू 350, कैन यू स्कोर 350 आउट ऑफ 600? हम बोले यस आई कैन, बट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट टेल मी द सब्जेक्ट्स, ये पता नहीं क्या क्या है। तो उसने बताया कुछ नहीं है यार, मैथ्स है, और एक पेपर इंग्लिश है, 200 नंबर का मैथ्स होगा मेंस में, 200 नंबर का इंग्लिश होगा, और प्री में मैथ्स इंग्लिश जीके सारा कुछ मिला के 200 नंबर का होगा। मैंने बोला 350 तो बहुत कम है यार, 350 तो ला ही सकता हूँ, क्या है। तो ये सुनने में बड़ा हल्की बात लग रही है ये, लेकिन क्या है ना कि आप जब ऐसा सोचोगे ना कि आपको बस इतना नंबर लाना है, तो आप वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेंट्स कितने हैं, कितने परसेंटेज सिलेक्शन होता है, इतना कम मतलब इनका इनपुट है, ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो आप कभी भी आपको मतलब आपकी कोई भी व्यूअर जो तैयारी कर रहे हो एस्पिरेंट हो, कभी उनको ऐसा ऐसा कंफ्यूजन होना है, मतलब चाहे ऐसे डाउट्स बहुत बार होता है, आप प्रिपरेशन करोगे आप भी होता है हाँ ये बहुत बार होता है, तो आपको ना अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा कि आप कैसे सोच रहे हो। और विश्वास करो, ट्रस्ट मी, जैसा आप सोचते हो ना एकदम आसान हो जाता है फिर चीजें। तो उसके बाद की एक और घटना बताता हूँ, उसके पास एक एग्जाम होता है जो सीआईएसएफ वगैरह में सब इंस्पेक्टर होते हैं, या, उसको हाँ सर, क्या बोल, सीपीओ, सीपीओ। सीपीओ एसएससी एक सीपीओ। होता है, और एक यूपीएससी लेती है, वो होता है जो सीएपीएफ। असिस्टेंट कमांड, सीएपीएफ, असिस्टेंट सीएपीएफ कमांडेंट। सीएपीएफ हाँ एग्जैक्टली। सर। तो सीपीओ का सबसे पहला मैंने एग्जाम दिया वही 2011 में, 10th था या 11 सीपीओ का, उसी ने फॉर्म भरवा दिया मेरा। तो लकली ना उसमें
मेरा स्कोर 130 समथिंग ऐसा आ गया, मतलब एप्टीट्यूड वगैरह आउट मेरा ऑफ ठीक था, क्योंकि 200? आउट ऑफ 200। तो साइंस का बैकग्राउंड था बेसिक, और वैसे भी वो सबसे इजी एग्जाम होता है, तो तुम भी जानते हो सीजीएल में अगर सबसे आसानी से नौकरी लेना है तो सीआईएसएफ में चले, मतलब यूनिफॉर्म सर्विस है ना, तो उसमें क्या है कि फिजिकल पे थोड़ा ज्यादा उनका कंसंट्रेशन फिजिकल होता है, थोड़ा तो टफ होता है, हाइट वगैरह रहती एग्जैक्टली है उसमें, तो हाँ। एग्जैक्टली तो रिटन रिटन पार्ट थोड़ा सा लीनियंट होता है सीजीएल के, अगर Lenient। कंपैरिजन में देखें तो। वो मेरा पहला एग्जाम था, वो निकल गया मेरा। अब उसके बाद वो आ गया कॉल लेटर की भाई इतनी तारीख को दौड़ है, दौड़ना है, हाई जंप लॉन्ग जंप ये वगैरह वगैरह। हाँ। तो उसका शाम का भी निकला, तब तक उसका सीबीएसई का फाइनल नहीं हुआ था, मतलब वो सारे प्रोसेस में था उसका। ठीक है, हम्म। तो हम लोग फिर दौड़ने गए, मुखर्जी नगर में रहते थे हम लोग। तो दौड़ने गए रात के 10 बजे, दौड़ने गए ना, तो जब जब आधा 1 किलोमीटर दौड़ के गए ना, तो मैंने श्याम से पूछा यार हम लोग यही नौकरी करेंगे और कोई नौकरी नहीं हो सकता हम लोग से? तो बता क्यों नहीं हो सकता। उसी समय उसने यही ये बात बोली थी कि 350 नंबर लिया सीजीएल में हो जाएगी सिविल नौकरी आराम हम्म। से, इनकम टैक्स वगैरह। उस समय कट ऑफ कम जाता था, 350, हम्म। 360, 70 में देखना अगर 2011-12 का मतलब हाँ। कभी कट ऑफ वगैरह, तो हम लोग जैसे लोगों का हो जाता था उस समय। आप आज की डेट में नहीं हो पाएगा। कंपटीशन अभी वैसे तो उस बहुत समय मतलब कंपटीशन इज टू मच। कंपटीशन है, मल्टीपल आईक्यू भी फोर्ट्स बढ़े हैं बढ़ लोगों गया है। की, हाँ वो भी है, मल्टीपल फोर्स बने, एप्लीकेंट्स भी बढ़ गए, आईक्यू बढ़ा है बढ़ लोगों गया का, है। रिसर्च और रिसोर्स भी बेरोजगारी बढ़ भी गया ना। बढ़ गई है। वो तो है ही, लेकिन एक चीज है ना, रिसोर्स भी बढ़ा है। उस समय आप इंटरनेट वगैरह या रिसोर्स ऐसा एग्जैक्टली ज्यादा नहीं था, आप आपके नहीं पास होता बुक्स था। होते थे, उसी से आप ये होता तो बहुत। तो ये नहीं है, तो एक होता है ना, सारी चीज बहुत सारे एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। फैक्टर्स है, बहुत सारे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नो डाउट अबाउट इट कि कंपटीशन इज टू हाई नाउ, बट रिसोर्स और संसाधन जो होता है ना, जो आप मतलब चीजों के प्रति आप कितना जल्दी, आज की डेट में कोई बंदा है अगर वो तैयारी करना चाहता है तो घर बैठ के भी ठीक ठाक कर लेगा, उस समय नहीं हो पाता हाँ। था। खैर, तो नहीं। ये हुआ। उसके बाद मैंने सीजीएल दिया और आईबी का एग्जाम दिया था उसी साल। एसीआईओ होता है एक आईबी का, तो हम्म। दिया था। तो मेरा दोनों ही निकल गया, सीजीएल भी निकला, लेकिन सीजीएल में वाह। क्या था कि अभी इंटरव्यू वगैरह बाकी था, और हम्म। नॉन इंटरव्यू में ऑडिटर हुआ था उस समय मेरा। ऑडिटर सीएजी में अच्छा। भुवनेश्वर पोस्टिंग थी मेरी। भुवनेश्वर सीएजी। सीएजी में ऑडिटर होता, उस समय 2800 पे ग्रेड था, अभी भी शायद 2800 ही है। नॉन इंटरव्यू में सीएजी में हम्म। ऑडिटर, हम्म। जैसे टीए होता है ना, ऑडिटर भी होता था। हाँ हाँ तो हाँ। भुवनेश्वर पोस्टिंग थी, तो मैंने सोचा क्या करूँ, किसमें ज्वाइन करूँ, तो मुझे लगा आईबी थोड़ा मतलब थोड़ा कैची है, थोड़ा लोग कम जानते हैं इसको, थोड़ा सा होता है ना, यंग यंग थोड़ा गन हो आप, सोशल थोड़ा सा। रेस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा है। हाँ, सोशल रिस्पेक्ट है थोड़ा, मतलब लगा कि हाँ यार ऑडिटर कौन जानता है, ठीक है, लेकिन आईबी है थोड़ा सा मतलब माहौल बनता है, तो मैंने आईबी ज्वाइन कर लिया। फिर आईबी में वही ट्रेनिंग वेनिंग हुई एमपी में। तो ट्रेनिंग के बाद फिर दिल्ली में तो ये होता है आप उसका। सर कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? आईबी आपने ये कौन से ईयर में मैंने क्रैक मैंने किया? ये क्रैक किया था मैंने 11 में, मतलब 11 में रिजल्ट आ गई थी, लेकिन मैंने ज्वाइन 12 में 2011 किया। हाँ। तो ज्वाइनिंग 12 में। तो तो वही है कि अच्छा। 9-10 जो है ना, 2009-10 एंड मतलब 11 भी थोड़ा बहुत, मतलब हाफ ऑफ 10। वो मैंने वो प्राइवेट नौकरी की थी, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया 2-3 महीने, उसके बाद फिर ये सारी नौकरियां निकल गई, तो फिर मैंने वो नौकरी वोकरी छोड़ दिया। अवेट कर रहा था ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइनिंग में थोड़ा डिले हो गया, टाइम लग गया था उस समय, तो वही 12 में मैंने ज्वाइन किया आईबी। दैट वाज माय फर्स्ट गवर्नमेंट मैं जॉब। थोड़ा सा यहाँ पे सर आपको थोड़ा सा कट करूंगा यहाँ पे। मैं अपने हम्म। व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर आवर यंग व्यूअर्स, कि बेसिकली वी कैन लर्न फ्रॉम सर दैट अ गुड फ्रेंड सर्कल इज ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी। बिकॉज जैसे सर ने कहा, हंड्रेड सर के परसेंट एक फ्रेंड थे, सर वॉज ऑलवेज अ बिलो एवरेज, मतलब ऑलवेज अ हाँ एवरेज या एग्जैक्टली, बिलो जो है एवरेज यू वो है। कैन से। बिल्कुल। बट सर का एक ऐसे फ्रेंड थे जो खुद ये सब में ऑलरेडी मतलब इंटरेस्टेड थे फ्रॉम द ऑलवेज फ्रॉम द बिगनिंग, एंड ही ऑलवेज मोटिवेटेड सर। तो कहने का मतलब यहाँ पे वी कैन लर्न फ्रॉम सर की इट इट इज वाज इट ऑलवेज। इट वाज लाइक it was like कि when we were in graduation, I basically used to pass in, like he used to always ask me कि भाई कैसे पास करेंगे, इसमें कैसे करेंगे। We were very below average student. I got 48%. I don't I am sorry Shyam if he's listening, मतलब or he will listen, but he got 43-42% only. So I thought कि when he can track it, why can't I? And he was more sure than me that I will easily crack in my first attempt, and I did that. So he यस सर। he had that trust in him कि भाई ये निकाल लेगा, ये पहली बार में निकाल लेगा, एंड मतलब फॉर्चुनेटली आई डिड इट द वे ही थॉट। सेकंड तो ऐसा सेकंड होता थिंग है। सर, जो सेकंड थिंग विच आई ऑब्जर्व फ्रॉम यू सर,
कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स लोग के माइंड में रहता है ना कि हम लोग तो एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है, हमने 10th 12th एकदम ऐसा ऐसा 60% भाई, पास किया है। मैं विशाल, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। गवर्नमेंट हम्म, जो, ये हालांकि बहुत लोग डिनाई करेंगे इस बात को, लेकिन ये मेरा हम्म, मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं ऐसा सोचता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर, स्पेशली हम्म, ओपन एग्जाम्स जो होते हैं, जो ओपन फॉर ऑल होता है, जैसे बैंक, पीओ, डब्ल्यूबीसीएस, यूपीएससी, ये सारे एग्जाम जो सब मतलब कोई स्पेशलिस्ट एग्जाम नहीं है, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स हम्म, करके एक प्रोफेशनल पद के लिए आप नहीं दे रहे हो ना, तो दे आर फॉर, मतलब दोज एग्जाम्स स्पेशली डिजाइन फॉर पीपल लाइक अस ओनली, जो लाइफ में जिनका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, स्पेशलाइजेशन किसी में नहीं है ना, उनके लिए ही एग्जाम्स होते हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे जैसे ही हैं, बस थोड़ा हम्म, मतलब अटेंटिव है, चीजों को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बस उनके लिए ये बना हुआ है। अगर आपने किसी चीज में स्पेशलाइजेशन कर रखी है तो आप उस फील्ड में जाओगे, आप पीएचडी करोगे, आप रिसर्च करोगे, आप किसी पर्टिकुलर चीज पे करोगे, वो अलग चीज है। लेकिन ओपन एग्जाम ओपन होता है, वो मतलब हम जैसे गधों के लिए वो बनाया जाता है कि वो बस आप लगे रहें और निकल जाओगे आप। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जो ये बिलो एवरेज, इवन यार तुम अगर यूपीएससी स्टूडेंट का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, बहुत ऐसे ऐसे सिंपल बैकग्राउंड से लोग आए हैं जिन्होंने आईएएस क्रैक किया, क्रैक ही नहीं किया, टॉप किया उन्होंने। तो ऐसा ये बहुत कॉमन है। ऐसा कुछ नहीं है कि 80% चाहिए, 90% कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सब हवाबाजी है ये सब। ये मैं अपने पर्सनल हम्म। पर्सपेक्टिव और अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। मैंने तो दो ये सर, एग्जांपल दे दिए, मैं और मेरा दोस्त श्याम, हम्म, दोनों ही बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। ये सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर किया है। मतलब ये बहुत लोगों का मन में डाउट रहता है कि हम लोग तो बिलो एवरेज रहे हैं, तो हम लोग क्या गवर्नमेंट जॉब पा सकता है, गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी इनफैक्ट मतलब स्टार्ट करना चाहिए। सो सर इसके आगे मतलब यहीं से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आईबी के सर थोड़ा आप एक्सपीरियंसेस बताइए, आपका ट्रेनिंग कहाँ पे यार हुआ, हाउ लॉन्ग वाज इट? मैं विशाल, 2012 में मैंने वो आईबी ज्वाइन किया। मेरे को रिपोर्ट करने को बोला यस, गया एमपी में, ग्वालियर के पास एक जगह है, यस, वहीं पे, मतलब ग्वालियर के पास ही, ठीक है। तो वहां पे चूंकि आईबी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मैं ओपनली पब्लिक फोरम पे नहीं बता सकता, तो जो बताने लायक है वो ऑब्वियसली मैं बताता हूँ, कुछ क्योंकि प्रोटोकॉल्स तो हमें नेशनल सिक्योरिटी को वो देख के, वो वो तो है ही। obviously, और जॉब छोड़ भी दी है, मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एनीवेज, ग्वालियर के पास एक ट्रेनिंग यस, ट्रेनिंग उनका है, तो वहां पे ट्रेनिंग हुई। वहां पे बेसिकली फिजिकल ट्रेनिंग हुई, जैसे अगर आप डब्ल्यू सीएस निकालते हो, अच्छा, तो पुलिस ट्रेनिंग जैसे बैरकपुर या फिर हम्म, एक्साइज में हो तो ट्रेनिंग होती है, फिजिकल हम्म, ट्रेनिंग। तो बेसिकली ट्रेनिंग दो पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट पार्ट था कि आपका फिजिकल ट्रेनिंग होगा, फिजिकल आपका एट्रीब्यूट्स देखा जाएगा। सेकंड ट्रेनिंग वाज मोर इन टेक्निकल टर्म्स, लाइक बहुत सारी ओके, चीजें होती हैं आईबी में, कोवर्ट ऑपरेशन कैसे करें, ऑपरेशन कैसे डिजाइन होता है, बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स वगैरह को पहचानना, ट्रैक करना, कंप्यूटर पे लाई डिटेक्टर टेस्ट से बचना, ये सब जो टेक्निकल एक्सपेक्ट है ऑफ द ट्रेनिंग वाज इन लेटर पार्ट, एंड द फर्स्ट मीन्स पार्ट वाज फिजिकल। everything as an intelligence officer should know, right sir? Exactly. Most of it, at least Most initially, of most it, of it, nobody can learn yes. everything of ना। तो फर्स्ट पार्ट वाज बेसिकली फिजिकल पार्ट, तो उसमें वो ग्वालियर वाला साइड में वो दौड़ भाग दौड़ाना, बंदूक चलाना, यही सब काफी मजा आया। यंग में अब बंदूक चला रहे हो, ये सब वगैरह वगैरह, तो काफी कुछ हुआ। वो तो बेसिकली ट्रेनिंग था 2 महीने का वहाँ, 2 months, Hmm. एंड देन इन दिल्ली आईबी Okay, हेडक्वार्टर्स में 2 महीने। तो okay, जैसा कि आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हो ना, वो सेक्टर होता है, क्लियरेंस मिलता है, आप यहाँ तक जा सकते हो, फिर आपका क्लियरेंस हुआ नहीं, वैसा पूरा डिजाइन था वहां पे। एंड इवन अच्छा, मतलब यू वोंट बिलीव कि उस समय बंगाल कैडर के 2 आईपीएस थे, न्यूली रिक्रूट आईपीएस, मतलब न्यूली क्या, मतलब 1-2 साल हुआ होगा उनका, 1-2 साल सीनियर थे, वो भी हम्म, हमारे साथ ट्रेनिंग में थे। तो दैट वाज वाह, वेरी फन, बिकॉज वो सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे साथ थे, उनका भी आईबी का अटैचमेंट ट्रेनिंग था, तो 15 दिन का था ही उनका, तो 15 दिन का ही था, हमारा 2 महीने का था। तो ऐसा होता है ट्रेनिंग बेसिकली। उसके बाद उसी ट्रेनिंग के पार्ट में हम लोग पार्लियामेंट वगैरह गए, सारा कुछ घूमे वूमे, सारा कुछ बताया गया। तो बेसिकली वो लर्निंग फेज भी था, बहुत सारी चीजें ले जाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बहुत सारे एक्सेस एयरपोर्ट्स वगैरह में आप कैसे करोगे। इवन मैं बता दूं, जो आप कभी जैसे आप फॉरेन जाओगे ना, कभी बाहर जाओगे, हम्म, तो हम्म, इमिग्रेशन पे जो लोग बैठे होते हैं ना, वो भी आईबी के होते हैं सारे। तो वहां पे भी हमारी 1-2 दिन ड्यूटी जैसी ट्रेनिंग हुई, कैसे होता है, आप क्या चेक करोगे पासपोर्ट पे, कैसे सवाल पूछोगे। बेसिकली वो जूनियर, हमसे जो जूनियर सब ऑर्डिनेट होते हैं वो लोग बैठते हैं, लेकिन हमें भी उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिखाया गया। तो ये सारा ओके, हुआ। उसके बाद हम सब रैप अप हुआ, तो इनिशियल पोस्टिंग
जैसा कि आईबी है तो बॉर्डर इलाके में ही होगी। तो मेरी पोस्टिंग हुई नागालैंड, मेरी और मेरा एक फ्रेंड था उसका नागालैंड हुआ, और बाकी मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे सारा, मतलब वी वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द पैन इंडिया, स्कैटर्ड कर दिया गया है बेसिकली मतलब एप्लीकेशन। सेंसिटिव जो जगह है वहीं पे फर्स्ट पोस्टिंग एग्जैक्टली आप लोग एग्जैक्टली की। एग्जैक्टली। वो होता है ना, आप जानते हैं कि एक बार ये थोड़ा उम्र हो जाएगा, शादी वादी हो जाएगा, उसके बाद ये खुद एप्लीकेशन लगाने लगेगा कि पीस हाँ इलाके में दीजिए, मेनलैंड में दीजिए, कलकत्ता दीजिए, दिल्ली दीजिए, या अच्छी अच्छी जगह में दे दीजिए। इनिशियली ये यंग है तो अभी कहीं भी चला जाएगा, तो वो फेज होता है, वो सारी ट्रेनिंग्स में होती है। और बेसिकली ओके। आप देखोगे कि जितना भी यूनिफॉर्म सर्विस जैसा है ना, उसमें तो देता ही, इवन आर्मी वगैरह में भी स्टार्टिंग में देते हैं ना, तो सब मेरा भी हाँ नागालैंड, नागालैंड में अच्छा, आपकी तो फर्स्ट पोस्टिंग नागालैंड में हुई। जी। अच्छा सर। तो सर मैं आपसे, आपने क्योंकि सर यू क्रैक्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO ग्रेड 2 एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट सर? हम्म। तो ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो सर आपके हम्म। तरफ से जैसे अभी फर्स्ट स्टेज हो चुका है और ACIO का एग्जामिनेशन, तो अभी सर सबसे पहले तो सेकंड स्टेज है ऑब्वियसली, उसमें तो राइटिंग, राइटिंग डिस्क्रिप्टिव स्किल। राइटिंग एंड ऑल है। तो सर एग्जैक्टली। उस पे डिस्कस तो ठीक है, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हमें मिल जाती है, बट हम्म। बेसिकली जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, एंड क्योंकि IB एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें इंटरव्यू का 40% टोटल में एग्जैक्टली से वेटेज होता है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली। what suggestion you would you like to give to our aspirants सी regarding the interview of IB especially? सी आईबी, व्हाट आईबी वांट्स, आईबी डजंट वांट फ्रॉम यू कि आप हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दैट ठीक है, दैट इज बेसिक, एवरीवन शुड नो अबाउट इट, एवरीवन हु हैज डन ठीक ठाक क्लास 10 अप टू पढ़ाई की है ना, तो ही कैन क्लियर आईबी रिटन एग्जाम। बट द पॉइंट इज कि व्हाट आईबी वांट्स फ्रॉम यू, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस who usually apply for IB exams, but very few Hmm. crack it. So what IB wants? IB wants presence of mind. IB wants aptitude. IB wants smart answers. जैसे मैं बताता हूँ, that was my first, I cracked it in first attempt only. तो Hmm. और मैंने कभी तैयारी नहीं की, ऐसे मैंने बताया ना, 2011 में वो दो दो फॉर्म आया था CGL का, IB का, मैंने भर दिया था, तो मैंने ऐसे एग्जाम दे दिया, तो रिटर्न वाज ठीक ठाक, तो रिटर्न हो गया। रिटर्न में जो रिटर्न पार्ट होता है, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की पार्ट होती है, उस पर भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन पहले मैं इंटरव्यू पे आता Hmm. हूँ। तो Sure, sure. टिल इंटरव्यू, हाँ टिल इंटरव्यू, जब तक इंटरव्यू नहीं हुआ था, आई वाज नॉट वेरी श्योर कि आई वुड बी एबल टू क्रैक इट, इवन आई वाज नॉट श्योर कि मेरा प्री भी मतलब जो फर्स्ट फेज होता है एग्जाम का, वो भी निकला, वो Prelims, लकीली निकल गया। prelims, मैंने, हाँ, प्रीलिम्स बोलो या एक ही होता है, tier तो 1 प्रीलिम्स जो ही, भी। हाँ हाँ। टायर वन है, एक ही होता है उसमें तो उस समय एक ही होता था, अभी पता नहीं एक ही होता है आज भी शायद। तो उस समय पता नहीं था, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्लियर कर लूंगा, तो लकीली फॉर्चुनेटली आई क्लियर इट। तो ठीक लगा, हम्म। अच्छा है, चलो बढ़िया है, लेकिन मुझे लगा ठीक है, सॉरी। इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू में ना, कभी भी ना, जैसे मैंने, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन फिर भी मैं, मतलब अब चूंकि ये पूछ रहे हो तो मैं बता दूं, जैसे WBCS इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो आई सॉ अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स वर वेरी casual in their appearance in the day of interview. when you कैजुअल एज इन when सर? you are going, casual in, मतलब they have not tucked their shirts properly, they are not wearing any suits, और मतलब कोई ठीक है, आप नहीं पहनो, आप शर्ट तो कम से कम प्रॉपर, मतलब शर्ट भी क्या मतलब वेरी फ्लेकी कलर्स के शर्ट मतलब एक पहनो, प्रॉपर फ्लैशी अटायर कलर्स है, होना चाहिए। प्रॉपर अटायर नहीं था उनका, मतलब अपीयरेंस जो था ना, वो बहुत कैजुअल आउटलुक से था। तो आपको खुद समझना चाहिए, व्हेन यू आर गोइंग अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, और पोस्ट ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव पोस्ट हैं, यू विल बी होल्डिंग टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन ब्लॉक्स एंड सब डिविजंस, मैं WBCS की बात कर एग्जैक्टली। रहा हूँ। तो यू शुड बी एटलीस्ट प्रेजेंटेबल ना, तो सामने वाले को भी तो लगे कि आप सिंसियर हो, जिस वो ठीक है, आपने प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, एंड यू आर हियर नाउ, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, मतलब द होल प्रोसेस। इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लोग जनरली इंटरव्यू को बहुत हल्के में लेते हैं, हल्का में लेने वाली बात नहीं है वो। बेसिक देखो, उनको तुमको हिस्ट्री नहीं पूछना है, ज्योग्राफी नहीं पूछना है, उनको तुम्हारा नॉलेज नहीं चेक करना, दे हैव ऑलरेडी चेक्ड इट। आपने 1200 1400 नंबर का एग्जाम देके प्री मेंस क्लियर किया है, तो दैट मींस कि यू हैव सक्सेसफुली डन इट ना, दे नो दैट यू नो इट। ऑब्वियसली। अब उनको क्या जानना है? आपको जानना है कि आप कैसे बैठते हो, आप कैसे दिखते हो, आपको सिचुएशन देंगे तो आप कैसे हैंडल करोगे, मतलब एग्जैक्टली। बेसिकली ये
प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं और आपका मतलब अटेंटिवनेस देखते हैं कि आप किसी को कैसे सुनते हो और कैसे रिप्लाई करते हो। तो उसमें आप कैजुअल एक तो ये मेरे को थोड़ा लगा कि आप डब्ल्यूबीसीएस में मैं बाद में आऊंगा। तो इंटरव्यू में मैंने लकीली वो एक कोट खरीद लिया था उससे पहले, तो मैंने पहन लिया था, ब्लेजर जैसा था। तो दैट एडेड इन माय परफॉर्मेंस। उन्होंने इस बात को नोटिस किया, उन्होंने बोला भी कि ठीक आपने अपना मतलब अपीयरेंस आपने ठीक रखा है। सेकेंडली, उन्होंने बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस किए उस समय। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन का मैं मतलब एक जिक्र करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि कोई बंदा है, आपको बस उसके बारे में टिट्स बिट्स पता है थोड़ा बहुत, ठीक है, कि उसका सरनेम ये है, नाम नहीं पता, सरनेम ये है, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि दिल्ली में रहता है या कलकत्ता में रहता है, तो आप उसे कैसे ढूंढ ट्रैक करना है, तो कैसे ट्रैक करोगे, हाउ दे डिमांडेड, द सिचुएशन डिमांड्स इट। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, नॉलेज बहुत अगर आपको नहीं आता है कुछ, आप सिंपल सॉरी बोलिए, कॉन्फिडेंट दिखिए, क्योंकि नॉलेज चेक करने नहीं बैठे, दे हैव ऑलरेडी चेक्ड इट थ्रू फेजेस, मतलब वेरियस मेथड से उन्होंने चेक कर रखा है, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, हर तरीके से चेक कर रखा है। तो बेसिकली यू शुड बी प्रेजेंटेबल, थोड़ा प्रॉपर अटायर में जाइए, यू शुड अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द पोस्ट दैट यू हैव अप्लाइड फॉर। आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा तो उनको भी दिखना चाहिए ना कि आप कैजुअल आउटलुक नहीं है आपका लाइफ के प्रति, आप थोड़ा सीरियस है, आप ऐसे गंभीर ऐसे सीरियस पोस्ट को होल्ड करने लायक मतलब सेंसिटिविटी रखते हो इन योर, मतलब वो तो आप जज नहीं कर सकते ना, वो आपको देख के ही पता करेंगे। बेसिकली यही सारी चीजें उन्होंने पूछी, आईबी में भी और डब्ल्यूबीसीएस में भी, सारे एग्जाम्स में। तो उन्होंने, हाँ तो एक मैं सर ये बता रहा था कि हाँ एक मैं हाँ सर बता रहा बोलिए। था कि उन्होंने बोला कैसे ट्रैक करोगे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला कि सर ट्रैक करेंगे जैसे कि सोशल मीडिया उस समय नया नया, नया क्या मतलब हाँ मेरे लिए तो नया ही था, 2011-12 में तो नया नया उठ रहा था, ऑर्कुट था उस समय। फेसबुक भी आ गया था लेकिन उतना हाँ पॉपुलर नहीं था, ऑर्कुट था। तो जी सर। मैंने बोला कि सर सरनेम से सर्च करेंगे, ठीक है। तो बोला सरनेम से तो बहुत सारे आ जाएंगे दिल्ली में जैसे। तो मैंने बोला सर मैं इंटरेस्ट जानने की कोशिश करूंगा कि उसका बेसिकली इंटरेस्ट क्या है, वो पब में जाता है, क्रिकेट खेलने का मतलब उसको इंटरेस्ट है, वो सॉकर पसंद करता है, कैसे मतलब जैसा इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट से मैं मतलब सब सेट लगा लगा के मैं मतलब एटलीस्ट 3 या 4 मतलब टारगेट्स पे पिन डाउन करूंगा, फिर मैं उसको फॉलो करूंगा। ऐसे करके मैंने बहुत जवाब दिया था, बहुत सजा के। तो बेसिकली मेरे को लगता है मुझे कि ये आंसर उनको बहुत पसंद आया। और इंटरव्यू होने के बाद, जैसे मैं पहले श्योर नहीं था, मैंने बताया कि ठीक है यार पहला अटेम्प्ट है, दे लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद मेरा फ्रेंड एक गया हुआ था, मैंने उसने पूछा कैसा गया, मैंने बोला 99.9% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कंफर्म। मतलब वो फील आ जाता है, वो एक फील आ हो जाता है, जाता वो इंटरव्यू देने के बाद आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो है। ये था। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो सर आपसे मतलब आप क्योंकि इतना अच्छा से आपका खुद का इंटरव्यू गया था, तो सर एक एडवाइस जो और आप देना अगर चाहेंगे हम्म, आईबी के, मतलब स्पेशली मैं ये सिर्फ आईबी के एस्पिरेंट्स को बोल रहा हूँ जो लोग, बिकॉज एक आईबी एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है फ्रॉम सीजीएल और डब्ल्यूबीसीएस जो जॉब्स ऑफर करते हैं। हम्म, तो एनी एडवाइस, एनी सिंगल द वन एडवाइस दैट you will give to the aspirants? से कि इफ यू डोंट हैव इंटेंट टू वर्क इन इट फॉर इट, अगर आप जस्ट ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आप अगर जस्ट बिकॉज यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, आपको चाहिए आईबी, तो आईबी इज नॉट फॉर यू। आप बैंक क्लर्क जाओ, आप सीजीएल दे दो, आप मतलब ठीक है, आप सेटल होना चाहते हो गवर्नमेंट सर्विस लेके, तो आईबी आईबी इज फॉर पैशनेट पीपल। एंड दे एक्चुअली दे कैन ट्रैक इट, दे कैन ट्रेस इट इन इंटरव्यू, कि Yes. आप जस्ट बिकॉज यू वांटेड अ जॉब तो आप वहां पे चले गए, या फिर यू रियली वांट टू वर्क फॉर आईबी। तो आईबी देखो, आईबी हुआ, रॉ हुआ, या सीबीआई हुआ, मान लो एक इंस्टेंस में बात कर रहा हूँ, ये सब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मतलब सेल टैक्स जैसा या इनकम टैक्स जैसा का रेगुलर डिपार्टमेंट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि सेल टैक्स या इनकम टैक्स एक मतलब वैसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट। इट जस्ट कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जैसे होता है ना आर्मी ज्वाइन करना, तो आर्मी सब ऐसे ज्वाइन नहीं करते, कुछ लोग करते होंगे वैसे भी, लेकिन आई भी पैशन ढूंढता है। अगर आप मतलब पैशनेट नहीं हो उस यूनिफॉर्म के हम्म, प्रति, तो आप ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। आप फिर मतलब वो आपको मन ही नहीं लगेगा वैसे चीजों में, होता है ना। तो वो मतलब है सर थोड़ा। हाँ सर, जितना तक मैं ड्रॉ आउट कर पा रहा हूँ आपका कहने का मतलब वही है कि जो लोग बेसिकली 9 to 5 जॉब वाले लोग के लिए नहीं है हाँ, आईबी। रेगुलर जॉब्स के लिए मतलब नहीं है, मतलब आप हो सकता है आप लकीली निकाल लो, या आपका सारा कुछ अच्छा है, आपने निकाल जरूर लिया। जैसे यूपीएससी भी होता है ना, लोग आईएएस बनने के लिए एग्जाम देते हैं,
थोड़ा रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, आईपीएस मिल जाता है तो लोग छोड़ते तो है नहीं भाई, आईपीएस हो गया। लेकिन ना उनका वो मतलब एटीट्यूड, वो एप्टीट्यूड नहीं होता है वो आईपीएस वाला, वो थोड़ा बैठ के वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर ले टेम्परामेंट तो नहीं बहुत लोग होता। होता है ना। एग्जैक्टली exactly. तो वो देखना वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते फील्ड में, दो दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड बिकॉज मतलब दे क्रैक्ड एंड यूपीएससी, एंड बट ओवर स्टिल वो ओवर द टेम्परामेंट नहीं पीरियड, था। एंड सर ओवर द पीरियड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी मतलब आ जाता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि तभी तो फैमिली से भी अट्रिशन है ना। दूर है। एग्जैक्टली अट्रिशन तभी है। और बहुत बहुत बार ऐसा भी देखा है, मुझे पता है, मैं एक बंदे को जानता हूँ who could have easily gotten into IAS but he chose ओके IPS over IAS। मतलब उसका रैंक इतना अच्छा था कि वो IAS मिल सकता था उसे, but he chose IPS ओके over IAS। So he had that temperament in it, he always wanted uniform, you know, on his shoulder, stars and everything। तो he is very happy even आज 6-7 साल हो गए and he is very happy। तो होता है ये, temperament is very important। तो ये है। ओके सर, गॉट इट सर। तो सर नेक्स्ट अब हम लोग आईबी से रिलेटेड तो बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे फैक्ट्स भी आपने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट विल मूव ऑन टुवर्ड्स योर अदर जॉब्स। तो आईबी, व्हेन डिड यू लीव द जॉब ऑफ आईबी सर, इन विच ईयर? मैंने I left IB in 2014। ओके 14 देन Feb, I guess, February, व्हाट yeah। वाज योर रीजन, व्हाई डिड यू लीव आईबी? Multiple reasons, not one। First was posting in Nagaland। वो पहले दिन से ही मेरे को ओके बड़ा अजीब लग रहा था बिकॉज आई वाज मतलब ऑल इन ऑल अ मेनलैंड किड। ठीक है, तो वो मतलब ओके ये, लेकिन ये पहले दिन की बात है या पहले महीने की बात हो सकती है, बट लेटर ऑन अच्छा। इट स्टार्टेड डूइंग ऑन मी। मतलब वो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर होता है ना किसी जगह पे आप रहते 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 फिर मतलब अच्छा लगने लगता है। So basically there are multiple folds why I left IP। First was my place of posting, Nagaland। Though initially I was like कि कहाँ आ गए यार, मतलब I never went to any hilly place before, like so। और मेरा जो posting था that was on extreme hilltop, like मतलब I'm in charge ओके of a post, like we have thanas in our mainland area, local police हाँ stations। हाँ हाँ In a similar fashion, we had you know, posts in small sectors on hilly regions near to the bordering areas of China and nearby, you know, international borders। म्यांमार के साथ भी border था, चाइना के साथ भी border था, तो I was basically near to China border। तो I was post in charge। तो basically ट्रैक करके जाना, मतलब वो होता है ना, ट्रेकिंग करके जाना पड़ता था। तो वो हम्म। सारा was very thrilling at point of time। धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे अच्छा भी लगने लगा। हम्म। लोग थे, बहुत सबॉर्डिनेट थे, जूनियर्स थे, वो बनाते थे एंड आई वाज इन चार्ज ऑफ दैट पोस्ट। मतलब मैं सबसे सीनियर था उस पोस्ट पे। तो कुछ अच्छा। ज्यादा काम नहीं था, बस वो आईबी का जो मेन है मतलब थोड़ा बहुत वो होता था। लेटर ऑन हम्म। मैं 1 साल के आसपास वहां रहा, बीच बीच में आता भी था। फिर मतलब हम्म। सारा कुछ ठीक चल रहा था। मीनवाइल ना मेरा वो एसएससी का सीजीएल का रिजल्ट आ गया और उसमें मेरे आई मतलब इनकम टैक्स में हो गया वो दिल्ली में। दैट वाज इनकम माय टैक्स इंस्पेक्टर। मैंने बोला ठीक है अभी तो ज्वाइनिंग आई, बाकी देखते हैं। मीनवाइल घर में इशू हुआ। क्या हुआ मतलब दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई लॉस्ट माय मदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, शी वाज वेरी यंग, जो भी है। तो 2040 में माता जी का देहांत हो गया। तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि यार चलते हैं बैक टू द फैमिली। फैमिली नीडेड मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने वो मतलब वहां से रिजाइन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो मेरे जो पूरे आईबी सब्सिडियरी एसआईबी बोलते हैं, जो मतलब स्टेट्स में होते हैं ना आईबी, उनको एसआईबी बोलते हैं, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो उनके जो अच्छा। डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों छोड़ रहे हो, इफ यू वांट आई कैन प्लेस यू समवेयर एल्स। मतलब आपको जहाँ पोस्टिंग चाहिए आप ले लो, ये वो। मैंने बोला नहीं सर, अब मेरा मन भर गया, मैं आईबी में नहीं रहना चाहता हूँ। तो मतलब आई वाज लॉस्ट समवेयर बिकॉज आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, यू नो। मेरी ओके। माता जी को मतलब डिजीज या ऐसा कुछ इलनेस भी नहीं था, इट वाज ऑल सडन। तो हुआ तो जो भी है, फिर मैंने वो दिल्ली स्विच कर लिया। फिर मैं दिल्ली में था आईबी में, कुछ आईबी बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स में कुछ समय। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मतलब वहां पे भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो फिर मैंने उनके पास एप्लीकेशन दिया कि यार मेरी पोस्टिंग अब कलकत्ता। मैंने सोचा कि अब चलो अब रैप अप करो, दिल्ली विल्ली हो गया काफी, अब चले कलकत्ता अपना अपने शहर चलते हैं। तो सीजीएल वगैरह में ना बहुत थोड़ा सा ये इशू है, वो मतलब ट्रांसफर जो पॉलिसी है ना उनका वो अच्छा नहीं है। अब ट्रांसफर्स वो इजीली नहीं हो पाते हैं। हाँ हाँ, मतलब वो इंटर स्टेट ट्रांसफर वगैरह में इजीली पहले तो थोड़ा हो भी जाता था, अब तो और
मतलब मुश्किल हो गया, अब तो होता ही नहीं। इवन मेरा फ्रेंड बता रहा था श्याम की उसके डिपार्टमेंट में तो ट्रांसफर करके वापस बुला लिया है उन्होंने, मतलब अपने ओहो। कैडर में। जैसे गुजरात से दिल्ली कुछ लोग गए थे तो वापस बुला लिया, मतलब ऐसा भी हुआ। तो मैंने वो थोड़ा बहुत किया वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब 2-3 महीने वेट किया, उन्होंने किया नहीं, मैंने बोला वहाँ रिजाइन कर देता हूँ मैं। तो मतलब इतना मतलब होता है ना कि जब आप यंग होते हो ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, दोबारा निकाल लूंगा, मतलब ये तो कॉन्फिडेंस आ मतलब जाता है। तो मैंने वो सर रिजाइन आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हाँ जॉब प्रोफाइल से मैंने भी आपने रिजाइन कर दिया? मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद फिर मैं वापस मैंने सीजीएल दिया। ये ठीक ये है आप वापस कौन से ईयर के बात कर रहे हैं कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपका कौन विच ईयर यू गॉट इनटू इनकम टैक्स ट्वेल्थ इंस्पेक्टर? ट्वेल्थ ट्वेल्थ मैंने बताया ना वो 2009 यू पहला लेफ्ट? हाँ 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 हाँ। मतलब 11 में ऑडिटर मिला था, 12 में मैंने वो इंस्पेक्टर निकाला था, और 13 फिर अच्छा, और अच्छा, इसी बीच मीनवाइल मैंने वो 13 का सीजीएल भी दे दिया था। होता है ना जब आप होते हो तो आप बार फ्लो में बार रहते देते हो, हैं आप तो हाँ देते 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 रहते हैं, हाँ। फ्लो में होता है। जैसे डब्ल्यूबीसीएस में ही है, मान लो कि किसी को रेवेन्यू ऑफिसर मिला या किसी को कुछ मिला तो वो बार हाँ, बार देता है जब तक उसकी मनपसंद काम मिल जाए ड्रीम या पोस्ट नहीं फिर मिल खत्म जाती है ना हो जब। जाए। लेकिन अगर पूरा एग्जैक्टली तो 13 वाले में अगर किसी पुराने बंदे से पूछोगे तो पता चलेगा उस साल पहली बार ना वो चीटिंग का कुछ हुआ था, हाँ स्कैम हाँ, जैसा कुछ, चीटिंग तो का, वो पूरा हाँ मेंस हाँ। ही कैंसिल हो गया। हाँ कुछ हुआ था अच्छा। तो मेंस ही कैंसिल हो गया था दूसरा। तो मेरी तो मतलब हालत खराब हो गई थी भाई, मैंने रिजाइन भी कर दिया, ये मेंस भी कैंसिल हो गया, मैं क्या करूं। मेरे पास मतलब अभी अभी मेरे पास दो दो जॉब था। मैं आईबी में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर था, वहाँ इनकम टैक्स में था, और अचानक से अभी मेरे पास नौकरी नहीं है, लेकिन मैंने बोला ठीक है निकाल लेंगे क्या है। तो फिर दोबारा मेंस हुआ, फिर वो निकाला, लेकिन इस बार चूंकि कंपटीशन टफ हो गया था और मैं भी फ्लो में नहीं था, चूंकि नौकरी उसकी तो मैं पढ़ वढ़ नहीं था कुछ, बस ऐसे ही बैठ गया था मेंस देने। तो बहुत अच्छा नहीं रह पाया, 3 नंबर से, 3 या ऐसे ही 3-4 नंबर से, उस समय 400 समथिंग चला गया था, 400 समथिंग गया था कट ऑफ। तो मेरा 3-4 नंबर से इंटरव्यू पोस्ट रह गया, मैं नॉन इंटरव्यू में आ गया। यार अच्छा। ये तो अजीब हो गया यार कहानी। तो फिर मैंने बोला जो भी है, मुझे दिल्ली से अब मेरे को कलकत्ता जाना है, तो मैं आ गया यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ इनकम टैक्स ज्वाइन किया एज अ टीए। ठीक है। टैक्स तो असिस्टेंट। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया टैक्स असिस्टेंट, मतलब बोला तो ना मैंने मतलब इंटरव्यू, हालांकि आपने हाँ सर मतलब होता आपने है रियल लाइफ इनकम में टैक्स होता है। इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर का जॉब आपने रिजाइन करके फिर यहाँ पे 1 साल 2 साल हाँ, बाद में आपने एज टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन किया? अरे मैं आपको बताऊं विशाल, मैंने ऐसा मतलब सुना भी है और देखा भी है बहुत। हाँ। एक छोटी सी बात बताता हूँ। आसाम हम्म। कैडर का एक बंदा था, आईएएस, अच्छा। उसने एप्लीकेशन दिया गवर्नमेंट को बहुत पहले, मतलब 8-9 साल पहले की बात बताऊं। हम लोग जब उस समय दिल्ली में थे उसी समय सुनते थे मुखर्जी नगर में ऐसा भी हुआ है। उसने नौकरी छोड़ दी और वो राजस्थान का था, राजस्थान में जाके उसने एसडीएम ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन तो किया? होता है मतलब आप एसडीएम स्टेट अच्छा, सर्विस जैसे एसडीएम, अच्छा अच्छा, स्टेट पीसीएस। DO से शुरू होता है, डीएमडीसी। जी सर। लेकिन बाकी जी। स्टेट में यूपीसीएस हुआ या बिहार हुआ, राजस्थान, मतलब ज्यादातर स्टेट में डीएम होता है। तो ऐसा भी होता है। इवन इवन मैंने अभी सुना कहीं पे कि वीडियो वीडियो था उसने छोड़ के यहाँ पे अब मतलब एसीटीओ जो हमारे सेल टैक्स में जो मतलब ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप सी, एसीटीओ ग्रुप कुछ सी। अच्छी हाँ नहीं सर, हो रहा हाँ हो, सर। ग्रुप सी का हम्म। वो है, तो करते हैं लोग अपने अपने प्रेफरेंस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। तो मैंने भी वही किया। उसके बाद मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मेरे था कि मैंने ये अभी तक जिक्र नहीं किया है, हालांकि मुझे इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता ये, कि मैंने 2 बार आईएएस का मेंस लिखा है। क्रैक नहीं हुआ मेरे से, लेकिन मैंने लिख दिया था ऐसे ही, भी निकाल के मेंस वगैरह दे अच्छा। दिया था। हुआ नहीं मेरे से मेंस यार, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट नहीं था ना सरकारी नौकरी वाली। मैं बस एग्जाम देता था और उसके बाद भूल जाता था कि मुझे तैयारी हम्म। वारी करनी है, फिर मैं अपने दुनिया में मस्त हो जाता था, घूमता था फिरता था खाता, मतलब फ्लो में नहीं रहता था, मतलब तैयारी वारी नहीं करता था। एग्जाम आया, अच्छा चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा, तो 15 दिन महीने भर पढ़ लिए, तो उसमें तो वही होगा ना, मेंस में जाके आप अटक जाओगे कुछ नंबर से, तो वही होता था मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा क्या करें तो अब सर ये आपने, मतलब। हाँ। हाँ तो मतलब टीए था कलकत्ता में, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा सोचा, अब थोड़ा मतलब 1-2 साल हो था, मतलब तो 1 साल हो गई थी मतलब उस घटना की, माता का ध्यान का। फिर मैंने बोला चलो अच्छा चलो अब कुछ करते हैं, मतलब अब कुछ नया, अब इसमें थोड़ी होगा हम्म। टीए में यार। तो फिर किसी ने बताया कि डब्ल्यूबीसीएस होता है, ये होता है। मैंने बोला वो तो मैं जानता हूँ, स्टेट सिविल सर्विसेज होता है, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने आसपास कुछ ओके। लोगों से पूछा यार कैसा होता है एग्जाम, क्या होता है बताओ। तो कुछ लोगों ने डिमोटिवेट करने की भी कोशिश की करी उस समय, कि ভাই অনেক টাফ হয়, প্রি क्वालिफाई করতে পারবি না, फर्स्ट टाइम আছে তুই করতে পারবি না, मतलब इस तरह से बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसीएस चूंकि स्टेट सिविल सर्विसेज था
तो स्टेट सिविल सर्विसेज अपना रेपुटेशन है उसका, अपना एक होता है ना कि आपने पूरा फुल फ्लेज्ड आप सर्विसेज दे रहे हो, स्टेट दे रहे हो लेकिन फुल फ्लेज्ड है। तो आई वाज अ बिट कंफ्यूज, मतलब उस समय तो मेरे पास ज्यादा मतलब लोग भी नहीं थे, क्योंकि मैं बेसिकली अमर तो बेसिक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मतलब वैसे ही एग्जाम्स में गया, तो स्टेट के एग्जाम्स के बारे में मैं ज्यादा जानता भी नहीं था, और डब्ल्यूबीसीएस के बारे में तो कोई था ही नहीं आसपास दूर दूर तक कि मुझे कोई बताता। तो मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद मैं मतलब ऐसे ही ठीक है, जब कॉल लेटर आया मेरा, तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम मतलब मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई है ना जो लोग मतलब मैं बोलता हूँ लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन खैर वो है, हुआ है। मेरे दोस्त जानते हैं, मेरे जो आसपास वाले लोग हैं वो जानते हैं। जैसे प्रीलिम्स हुआ 2015 फर्स्ट अटेम्प्ट,